السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو اسٹور۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ شکریہ۔ دریائے نیل بڑی خاموشی سے بہہ رہا ہے۔ اس وقت آدھی رات گزر چکی ہے۔ قدیم مصر کے گہرے نیلے آسمان پر ستارے سفید موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں۔ یہ زمانہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں آج سے 4,500 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ ہماری تہذیب کی تاریخ شروع ہو رہی ہے۔ یہ مصر کے فرعونوں کا زمانہ ہے۔ دریائے نیل کے نیلے پانی میں ستاروں کا عکس جھلملا رہا ہے۔ دریا کے کنارے کھجوروں کے جھنڈ دور تک چلے گئے ہیں۔ کہیں زیتون کے درختوں کے جھاڑ ہیں اور کہیں انجیر کے درختوں کے جھنڈ ہیں۔ تھیبس کا شہر سو رہا ہے۔ دن بھر کے تھکے ماندے لوگ اپنے اپنے کچے پکے گھروں میں آرام کر رہے ہیں۔ سنسان گلیوں میں کسی وقت پہرے دار کی آواز گونج جاتی ہے۔ دریائے نیل کے کنارے شہر سے باہر ایک پختہ مکان میں زیتون کے تیل کا لیمپ جل رہا ہے۔ اس لیمپ کی روشنی میں ایک ادھیڑ عمر کی عورت لکڑی کے صندوق میں سے پتھر ماپنے والا فیتہ تلاش کر رہی ہے۔ 12-14 برس کا ایک نوعمر لڑکا جس کا نام امبر ہے اس کے پاس کھڑا ہے۔ امبر کا باپ وہاں سے 4-5 میل دور صحرا میں ایک اہرام میں کام کر رہا ہے۔ امبر کے باپ کا نام رجال ہے۔ وہ اہرام بنانے میں ماہر ہے۔ اہرام پتھروں کی اس تکونی عمارت کو کہتے ہیں جس میں مرے ہوئے فرعون کی لاش کو دوائیاں لگا کر غلاموں، کنیزوں اور سونے چاندی کے زیوروں کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا۔ امبر اصل میں اس بوڑھی عورت اور بوڑھے باپ رجال کا بیٹا نہیں ہے۔ آج سے 12-13 برس پہلے امبر انہیں دریائے نیل کی لہروں میں ایک ننھی سی کشتی میں بہتا ہوا ملا تھا۔ وہ زمانہ مصر کے ایک ظالم فرعون کا زمانہ تھا۔ نجومیوں نے فرعون کو بتایا تھا کہ اس کے محل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر اسے زہر دے کر ہلاک کر دے گا۔ فرعون نے حکم دیا کہ محل میں جو بھی نیا بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ 4-5 برس کے اندر اندر جتنے بچے محل میں پیدا ہوئے ان سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ آخر ایک رات امبر ملکہ فرعون نفریتی کے ہاں پیدا ہوا۔ ملکہ کو معلوم تھا کہ فرعون کو پتہ چل گیا تو وہ اسے ضرور قتل کرا دے گا۔ اس نے اپنی ایک کنیز کے ساتھ مل کر بچے کو ایک ننھی سی کشتی میں لٹایا اور دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا بیٹا کسی نہ کسی کسان یا ماہی گیر کے ہاتھ آ جائے گا اور وہیں پرورش پائے گا۔ اس طرح وہ قتل ہونے سے بچ جائے گا اور کم از کم زندہ تو رہے گا۔ اگر خدا کو منظور ہوا اور زندگی رہی تو کبھی نہ کبھی اس کی بیٹے سے ضرور ملاقات ہو جائے گی۔ فرعون کو بچے کی پیدائش کا کوئی علم نہ ہوا۔ اسے یہی کہا گیا کہ ملکہ کے ہاں مردہ بچی پیدا ہوئی ہے جسے دفن کر دیا گیا ہے۔ ادھر ننھا شہزادہ گھاس پھوس کی بنی ہوئی چھوٹی سی کشتی میں دریا کی لہروں پر بہتا ہوا بہت آگے نکل گیا۔ دن چڑھا تو ادھیڑ عمر کا اہرام مصر کا انجینئر رجال دریا کنارے پتھر کٹوا رہا تھا کہ اس نے کشتی میں ایک بچے کو دیکھا۔ وہ اسے اٹھا کر گھر لے آیا۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کی بیوی بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے امبر کو اپنے بچے کی طرح پالنا شروع کر دیا۔ اب امبر اس گھر میں پل کر 14 برس کا ہو گیا تھا۔ اسے بالکل نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ ان کا بیٹا نہیں ہے۔
बल्कि उन्होंने अंबर को दरियाए नील से उठाकर पाला है। रिजाल को ही अपना असली बाप और उसकी बीवी को अपनी माँ समझता था। वो दोनों भी अंबर से अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते थे। अंबर अपने बाप के साथ ही बचपन से काम करता आया था और वो भी एहराम बनाने का काम सीख रहा था। उसके साथ ही साथ उसने अपने बाप से जंगली बूटियों से दवाइयाँ बनाने और बीमार लोगों का इलाज करने का हुनर भी सीखना शुरू कर दिया था। उस रात भी वो अपने बाप के साथ शहर से 4 कोस के फासले पर एक नए एहराम की तामीर का काम कर रहा था। उसका बाप रिजाल हमेशा अंबर को अपने साथ काम पर रखता था। अचानक पत्थर मापने का फीता टूट गया और अंबर के बाप ने उसे घर भेजा कि वो संदूक में से नया फीता ले आए। अंबर घोड़े पर सवार होकर घर आया और माँ से कहा उसे अब्बा जान ने नया फीता लेने भेजा है। उसकी माँ ने संदूक में से तलाश के बाद नया फीता निकाल कर दिया और कहा, अंबर बेटा ये लो फीता और होशियार रहकर वापस जाना। अंबर ने हंसकर कहा, फिक्र न करो माँ, मैं एक इंजीनियर बाप का बहादुर बेटा हूँ, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे बेटा। अंबर ने फीता जब जेब में रखा और घोड़े पर सवार होकर उसे दौड़ाते हुए दरियाए नील के किनारे के साथ साथ एहराम की तरफ रवाना हो गया। आधी रात का वक्त था। जैतून और खजूरों के झुंड अंधेरे की स्याह चादर ओढ़े दूर से भूत मालूम हो रहे थे, मगर अंबर को किसी किस्म का कोई खौफ या डर महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए कि वो अपने बाप के साथ अक्सर रातों को काम करता रहता था और इधर से कई बार गुजरा करता था। रास्ते में रेत के एक ऊंचे टीले के दामन में अंजीरों का एक छोटा सा बाग था, जिसमें एक झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी में अनातुल नाम का एक दरवेश रहता था। अनातुल दरवेश अंबर से बहुत प्यार करता था। अंबर ने देखा कि अनातुल अपनी झोंपड़ी के सामने बैठा खुदा की इबादत कर रहा था। अंबर ने घोड़े पर करीब से गुजरते हुए उसे सलाम किया और आगे निकल गया। अनातुल ने आंखें खोलकर अंबर को घोड़े पर जाते देखा और फिर आंखें बंद कर ली। अनातुल दरवेश को मालूम था कि अंबर मलका नफरीती का बेटा है। वो फिरौन मिस्र की औलाद है और शहजादा है। वो इंजीनियर रिजाल का असली बेटा नहीं है, मगर उसने अंबर को कभी नहीं बताया था कि वो मिस्र का शहजादा है, क्योंकि उसे मालूम था कि अंबर को बताने से कोई फायदा नहीं। अगर फिरौन को पता चल गया कि उसका बेटा खुफिया तौर पर रिजाल के घर में परवरिश पा रहा है, तो वो उसे गिरफ्तार करा के जरूर कत्ल करा देगा। अब तक फिरौन कितने ही महल में पैदा होने वाले शहजादों को कत्ल करवा चुका था। अंबर को एहराम अब सामने नजर आ रहा था, जहां उसका बाप रिजाल दूसरे मजदूरों और कारीगरों के साथ काम कर रहा था। फिरौन के हुक्म से उसके बूढ़े दादा के लिए ये एहराम खास तौर पर बनाया जा रहा था, क्योंकि दादा फिरौन बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसकी जिंदगी का चिराग गुल होने को था। इसलिए फिरौन आतून के हुक्म से एहराम जल्दी से जल्दी तैयार करवाया जा रहा था। यही वजह थी कि अंबर के बाप रिजाल को रातों को भी काम करना पड़ रहा था। अंबर ने एहराम में पहुंचकर फीता अपने बाप के हवाले किया और खुद भी उसके साथ काम करना शुरू कर दिया। रिजाल बड़े बड़े कटे हुए चौरस पत्थरों में लोहे की सेनी से निशान लगाता जाता था और अंबर इन निशानों पर याददाश्त के लिए सफेद रोगन फेरता जाता था। दोनों बाप बेटा एहराम के निचले तहखाने में काम कर रहे थे। ये वो तहखाना था जिसके अंदर बूढ़े फिरौन की लाश को ताबूत में बंद करके रखा जाना था। तहखाने की दीवारें कीमती पत्थरों से चुन दी गई थीं। दरमियान में संगे मरमर का एक शानदार चबूतरा बनाया गया था। इस चबूतरे पर फिरौन के ताबूत को हमेशा के लिए रख दिया जाना था। दीवारों के ताकों में सोने के शमादान रोशन थे। इस तहखाने का सिर्फ एक ही दरवाजा था, जो एक बहुत बड़ी पत्थर की सिल थी। ताबूत को तहखाने में रख देने के बाद इस सिल को आहिस्ता आहिस्ता अपने आप ही बंद हो जाना था। इसके बाद सिल को कोई नहीं खोल सकता था। उस जमाने में दस्तूर था कि बादशाह मरता तो उसके नौकर, कनीजें, खाने पीने का सामान, बर्तन, आराम करने का पलंग और उसके सोने जवाहरात उसके साथ ही तहखाने में दफन कर दिए जाते थे,
کیونکہ ان لوگوں کا خیال تھا کہ مرنے کے بعد اگلے جہان میں بادشاہ زندہ ہو جاتا ہے اور اسے ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 5000 سال بعد آج کے زمانے میں جب ان اہرام مصر کی کھدائی ہوئی اور آثار قدیمہ کے ماہر دہقانوں کی پتھری سل توڑ کر اندر داخل ہوئے تو وہاں انہیں غلاموں اور کنیزوں کی لاشوں کے پنجر بھی ملے۔ ابھی تو ہم اس زمانے کا ذکر کر رہے ہیں جب یہ اہرام تعمیر ہو رہے تھے۔ عنبر اپنے باپ رجال کے ساتھ کام کر رہا تھا کہ ان کا گھریلو ملازم پولکا چبوترے پر رکھی جانے والی سنگی مرمر کی سفید سل اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے سنگی مرمر کی سل زمین پر رکھی اور اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ پہنچ کر بولا، بڑے آقا، بادشاہوں کے مقبرے بناتے بناتے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ اگر میں بادشاہ ہوتا تو کبھی اپنا مقبرہ نہ بناتا۔ رجال نے مسکرا کر کہا، پولکا، اگر تم فرعون ہوتے تو میں تمہارا مقبرہ بڑا شاندار بناتا۔ عنبر نے کہا، پولکا، کیا خبر اگلے برس تم بادشاہ بن جاؤ۔ ملازم پولکا، جس کی عمر 40 سال تھی اور جو ایک بیل کی طرح ہٹا کٹا تھا، ہنس کر کہنے لگا، چھوٹے آقا عنبر، میری اتنی قسمت کہاں کہ میں بادشاہ بن جاؤں، میں تو غلام پیدا ہوا ہوں اور غلام ہی مروں گا۔ بوڑھے رجال نے کہا، فکر نہ کرو پولکا، میں تمہاری لاش کو حنوط کروا کے بادشاہوں کے مقبرے ہی میں دفن کروں گا۔ پولکا کہا مار کر ہنسا اور بولا، بڑے آقا، یہ پتھر دل مقبرے بادشاہوں ہی کو سلامت رہیں، میرے لیے مٹی کی کچی قبر ہی بہت ہوگی۔ مگر کبھی کبھی دل میں خواہش ضرور پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی بادشاہ ہوتا، پیٹ بھر کر مور، ہرن اور تیتر کا گوشت کھاتا، خرطوم کے سیب اور یول اور شلم کی میٹھی انجیریں کھاتا اور نرم نرم بستر پر سوتا اور غلام مور کے پنکھوں سے مجھے ہوا دے رہے ہوتے۔ بوڑھے رجال نے زیر لب مسکرا کر کہا، اچھا ابھی تو اٹھ کر باہر سے پتھر اٹھا کر لاؤ، بادشاہ بننے کا خواب پھر دیکھ لینا۔ پولکا زمین پر سے اٹھا اور اتنا کہہ کر باہر نکل گیا کہ ہائے ری قسمت، بیچارے پولکا، تیری قسمت میں تو پتھر ڈھونے ہی لکھے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد رجال اور عنبر دیر تک ہنستے رہے۔ پولکا ان کا بڑا وفادار غلام تھا۔ عنبر چھوٹا سا تھا جب رجال نے یہ غلام بابل کی منڈی سے خریدا تھا۔ اس زمانے میں بڑے بڑے شہروں میں ہر سال منڈیاں لگا کرتی تھیں جہاں گائے، بھینسوں اور گھوڑوں کے ساتھ ساتھ غلام بھی بکا کرتے تھے۔ لوگ گھوڑوں اور مویشیوں کے ساتھ ساتھ اپنے پسند کے غلام بھی خرید کر گھروں کو لے جاتے۔ امیر لوگ ان غلاموں سے بڑا سخت کام لیتے، وہ دن بھر ان سے کھیتوں میں ہل چلواتے، گوڈی کرواتے، باغوں میں جانوروں کی طرح کام کرواتے اور بہت کم کھانے کو دیتے۔ سخت محنت اور کم خوراک کی وجہ سے غلام بہت جلد بیمار اور کمزور ہو کر مر جاتے۔ امیر لوگ ان کے مرنے کے بعد منڈی سے نیا غلام خرید لیتے، مگر بوڑھا رجال پولکا غلام سے بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ وہ جو خود کھاتا وہی اپنے غلام پولکا کو دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ پولکا اپنے آقا رجال، اس کے بیٹے عنبر اور اس کی بوڑھی ماں سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا اور ان کی ذرا سی تکلیف پر اپنی جان قربان کرنے پر بھی تیار ہو جاتا تھا۔ بوڑھے رجال نے پولکا غلام کو بھی نہیں بتایا تھا کہ عنبر اس کا بیٹا نہیں ہے بلکہ مصر کے شاہی محل کا شہزادہ ہے۔ عنبر کی ننھی سی کشتی میں سے جو شاہی مہر ملی تھی وہ اس نے اور اس کی بیوی نے ایک پرانے صندوق میں سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ رات بھر احرام میں کام کرنے کے بعد صبح کے وقت رجال، عنبر اور پولکا واپس اپنے گھر آ گئے۔ عنبر کی ماں نے ناشتہ تیار کر رکھا تھا۔ ناشتے میں اونٹ کے پائے کا شوربہ اور خمیری روٹی تھی۔ سب نے مل کر ناشتہ کیا اور کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ عنبر سو کر اٹھا تو دوپہر ہو رہی تھی۔ اس کا باپ رجال اور غلام پولکا ابھی تک سو رہے تھے۔ اس کی ماں دوپہر کا کھانا تیار کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ عنبر نے غلیل ہاتھ میں لی اور باہر نکل آیا۔ پیچھے سے اس کی ماں نے آواز دی، بیٹا زیادہ دور نہ جانا، کھانا تھوڑی دیر میں تیار ہونے والا ہے۔ میں دریا کنارے مرغابیاں مارنے جا رہا ہوں، ابھی واپس آ جاؤں گا۔ اس کی ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر عنبر کو روکا بھی تو وہ کبھی نہیں رکے گا۔ عنبر آخر شہزادہ تھا، ضد اور دلیری اس کی فطرت میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ شکار کا بھی بہت شوقین تھا۔
घुड़ सवारी भी बहुत पसंद करता था, मगर इस वक्त वो पैदल ही गुलेल हाथ में लिए दरिया नील के किनारे किनारे चल पड़ा। मौसम बड़ा खुशगवार था। आसमान पर खिलाफे मामूल हल्के हल्के बादल छा रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। दरिया नील का पानी बड़े सुकून से बह रहा था और माहीगीर कश्तियों में बैठे मछलियों का शिकार कर रहे थे। अंबर को पीछे से किसी ने आवाज दी। अंबर ने पीछे मुड़कर देखा, ये बूढ़ा गोगोश था जो घोड़ों का चारा फरोख्त करता था और उस वक्त अपने मकान के आगे उगी हुई अंगूर की बेल को पानी दे रहा था। सलाम चचा। जीते रहो बेटा। अंबर, कहाँ जा रहे हो इस वक्त? मुर्गाबियों का शिकार खेलने जा रहा हूँ चचा। बेटे, जानवरों को ना मारा करो, ये तो कुदरत की मासूम भोली भाली निशानियां हैं। चचा क्या करो, मुझे भी शिकार अच्छा लगता है। वो तो ठीक है अंबर बेटा, मगर कभी कभी जानवरों से प्यार भी किया करो, ये अच्छी बात है। अभी तो शिकार कर लूँ चचा, फिर प्यार भी कर लूँगा। तुम्हारी मर्जी बेटे, वैसे तुम हमेशा मनमानी करते हो और ये कोई अच्छी बात नहीं। दोनों बातें ही कर रहे थे कि अचानक दरिया के ऊपर की तरफ से शोर सा मचा और माहीगीरों ने अपनी कश्तियां किनारों की तरफ लानी शुरू कर दी। फिर शाही गुलामों का बेड़ा आया और उसने माहीगीरों को हंटरों से मारना शुरू कर दिया। कमीनों, भागो यहाँ से, तुम्हें मालूम नहीं शाही मलका की सवारी आ रही है, भागो, तफान हो जाओ यहाँ से। माहीगीरों में अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते दरिया नील की सतह बिल्कुल खाली हो गई। अंबर ने गोगोश से पूछा, ये शाही सवारी किसकी आ रही है बाबा? मेरे ख्याल में मलका नफरीती की सवारी आ रही है। अंदर आ जाओ अंबर, यहाँ रुकना ठीक नहीं, अभी शाही गुलाम हंटर लेकर आ जाएंगे। अंबर ने जिद की कि वो वहीं खड़ा रहेगा और देखेगा कि कौन गुलाम उसको हाथ लगाता है, मगर गोगोश उसे खींचता हुआ अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। पागल हो गए हो क्या? तुम्हें मालूम नहीं जब मलका की सवारी आती है तो दरिया पर कोई चिड़िया पर भी पर नहीं मार सकती। अंबर खामोश रहा और खिड़की के सुराख में से दरिया की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर में दरिया के ऊपर की जाने से मलका नफरीती का बेहरा नमूदार हुआ। जब वो गोगोश के मकान के करीब से गुजरा तो अंबर ने देखा कि सैकड़ों कनीजों के झुरमट में मिस्र की बावकार मलका एक आलीशान अलमारी में बैठी है और कनीजें मोरछल हिला रही हैं और बार बार इर्द गिर्द खुशबूदार इतर छिड़क रही हैं। काफी फासले पर आगे आगे गुलाम और फौज के सिपाही रास्ता साफ करते जा रहे हैं। अचानक अंबर ने दरवाजा खोला और दौड़कर दरिया किनारे जा खड़ा हुआ। ये बड़ी जुर्रत का काम ही नहीं था, बल्कि शाही सवारी के खिलाफ एक बहुत बड़ा जुर्म भी था। मलका ने देखा कि 14 वर्ष का एक खूबसूरत लड़का दरिया किनारे खड़ा बड़े शौक से मलका की सवारी को गुजरते हुए देख रहा है। एकदम फौज का सिपा सालार आगे बढ़ा और उसने अंबर को कत्ल करने के लिए तलवार उठाई ही थी कि मलका ने उसे हाथ उठाकर रोक दिया। लड़के को मेरे पास लाओ। अंबर को मलका नफरीती के हुजूर पेश किया गया। अंबर इसी मलका नफरीती का बेटा था, मगर वो उससे बेखबर थी। माँ शाही मलका के लिबास में थी और बेटा एक मामूली कपड़ों में नंगे पांव गुलेल हाथ में लिए खड़ा था। लेकिन खून आखिर खून होता है। माँ के खून ने एक बार तो जोश मारा और वो टिकटिकी बांधे अंबर की नीली आंखों और स्याह रेशमी बालों को देखने लगी। फिर बोली, तुम कौन हो? अंबर ने झुककर सलाम करते हुए कहा, मैं रिजाल एहराम बनाने वाले का बेटा हूँ मलका। तुम शाही सवारी को देखकर छुपे क्यों नहीं? क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि मलका की सवारी के वक्त जो कोई बाहर हुआ उसे कत्ल कर दिया जाता है? मुझे मालूम था मलका आलिया, तो फिर तुम मकान से बाहर क्यों आ गए? मलका आलिया की शाही सवारी देखने बाहर आ गया था, और अगर तुम्हें सिपाही कत्ल कर देते तो मैं उनका मुकाबला करता मलका आलिया। ये एक दिलेराना जवाब था। मलका के खून ने एक बार फिर जोश मारा। इस किस्म का जवाब मिस्र का एक आम लड़का हरगिज नहीं दे सकता था। मलका नफरीती गहरी सोच में डूब गई। इतने में सिपा सालार ने झुककर अर्ज की, मलका आलिया, महल में आपका इंतजार हो रहा होगा। मलका मिस्र जैसे ख्यालात से चौंक उठी। हाँ, शाही सवारी को चलने का हुक्म दिया जाए। फिर वो अंबर की तरफ देखकर बोली,
लड़के तुम्हारा नाम क्या है? अंबर। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। अंबर ने झुककर मलका को सलाम किया और वापस अपने मकान में आ गया। शाही सवारी आगे चल पड़ी, मगर मलका नफरीती गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसे अपना बेटा, अपने जिगर का टुकड़ा याद आ रहा था, जिसको उसने कत्ल होने से बचाने के लिए दरिया नील की लहरों के सुपर्द कर दिया था। उसका दिल कह रहा था कि उसका बेटा मरा नहीं बल्कि जिंदा है। वो जरूर किसी न किसी माहीगीर के यहाँ परवरिश पा रहा है। मलका ने 10 वर्ष तक खुफिया तौर पर अपने बच्चे के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए बेपनाह कोशिशें की थी, मगर वो कामयाब नहीं हुई थी। अंबर को देखकर जाने उसे अपने बच्चे का ख्याल आ गया था। वो सोचने लगी कि कहीं अंबर ही उसका बेटा तो नहीं, मगर ये कैसे हो सकता है। अंबर मकान में दाखिल हुआ तो गोगोश ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। वो बहुत परेशान नजर आ रहा था। वो परेशान न होता तो और क्या होता। अंबर ने भी तो कमाल कर दिया था। वो अपनी जान खतरे में डालकर शाही सवारी को देखने बाहर निकल गया था, हालांकि उसे मालूम था कि इस जुर्म की सजा मौत है। उसने अंबर से कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए थे लड़के? आखिर ये तुम्हें क्या सूझी? अंबर ने सीना तान कर कहा, मैं मलका को देखना चाहता था। गजब खुदा का, तुम्हें मालूम नहीं था कि वो लोग तुम्हें हलाक कर देंगे? मालूम था, मगर मैं भी मुकाबले के लिए तैयार होकर गया था। मगर तुम अकेले शाही फौज का कैसे मुकाबला कर सकते थे? कम से कम 2-1 को तो जरूर मार कर मरता चचा। गोगोश ने माथे पर हाथ रखकर कहा, खुदा का शुक्र है कि तुम बच गए, वरना मैं तुम्हारे बाप को क्या मुंह दिखाता। चचा, शाही फौज में इतनी जुर्रत नहीं कि मुझे मार सके, मैं बहादुर लड़का हूँ। गोगोश ने हाथ बांधकर आंखें बंद कर ली और खुदा का शुक्र अदा किया कि अंबर मौत के मुंह से बचकर वापस आ गया। फिर उसने बड़े शौक से पूछा, अच्छा लड़की, ये बताओ मलका ने तुम्हें क्या कहा? मलका ने मुझसे मेरा नाम पूछा, बाप का नाम पूछा और कहा कि मैं मकान से बाहर क्यों निकल आया हूँ। फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा आपकी सवारी देखने निकल आया था। फिर मलका ने क्या कहा? मलका ने कहा कि अगर मेरे सिपाही तुम्हें कत्ल कर दे तो क्या होता। फिर तुमने क्या कहा? मैंने यही कहा कि मैं बहादुरी से उनका मुकाबला करता। फिर मलका क्या कहने लगी? पहले तो गहरी सोच में डूब गई, फिर बोली कि तुम बहादुर लड़के हो, जाओ वापस अपने घर चले जाओ। रब्बे अजीम, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मलका के दिल में रहम डाल दिया, नहीं तो खुदा जाने आज क्या हो जाता। अच्छा लड़की, अब यहाँ से अपने घर भाग जाओ और खबरदार आइंदा ऐसी जुर्रत फिर कभी ना करना। अंबर ने गुलेल लहराते हुए हंसकर कहा, मैं तो फिर मलका की सवारी देखने घर से निकल आऊंगा। जाता या नहीं बेवकूफ कहीं के, मैं आज ही तेरे बाप से शिकायत करूंगा। खुदा हाफिज चचा। अंबर हंसता हुआ गोगोश के मकान से बाहर निकल गया। वो सीधा अपने लंगोटिए दोस्त कहरमान के यहाँ पहुंचा। कहरमान उम्र में अंबर से 2 साल बड़ा था, यानी 16 वर्ष का था। वे एक पनीर बनाने वाले का बेटा था। जब अंबर ने उसे भी भयानक वाकया सुनाया तो वो बहुत खुश हुआ और अंबर के कंधे पे हाथ मारकर बोला, ये काम तो तुमने वो किया कि मैं खुद करना चाहता था। तुम्हें मालूम है मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? क्या है? ये कि मैं एक रोज शाही फौज का कप्तान बन जाऊं, मेरे एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में लोहे का हंटर हो। मैं घोड़े पर सवार होकर गुलामों के पास जाऊं और उनको जोर जोर से हंटरों से मारूं। अंबर ने कहा, मगर कहरमान, गुलामों पर जुल्म करना कोई बहादुरी की बात नहीं, मजा तो दुश्मन के साथ डट कर मुकाबला करने में आता है। कहरमान बोला, भाई मेरी तो यही ख्वाहिश है और तुम देखना एक ना एक दिन मैं जरूर फौज का कप्तान बनूंगा। इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कहरमान। वैसे तुम्हारा डील डोल इतना है कि तुम कप्तान बन सको। अंबर याद रखो, अगर मैं बादशाह की फौज का कप्तान बन गया तो तुम्हें भी अपने साथ रखूंगा और नील के किनारे एक शानदार महल बनाकर दूंगा। मुझे तुम्हारे बनवाए हुए महल की जरूरत नहीं कहरमान, मैं अपना महल खुद बनवाऊंगा। चलो हम दोनों अपने अपने महल खुद बनाएंगे। अच्छा अब चलो दरिया किनारे चलकर मछलियां पकड़ते हैं। दोनों दोस्त हाथों में हाथ डाले दरिया किनारे चल पड़े। दोपहर के खाने पर अंबर अपने साथ मछलियां लाया। माँ ने कहा, बेटा तुमने बड़ी देर कर दी, तुम्हारा बाप कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अंबर दूसरे कमरे में गया तो उसका बाप रिजाल लकड़ी के कटोरे में जैतून का तेल डाल रहा था।
اس نے अंबर को देखकर पूछा, इतनी देर कहाँ कर दी बेटे? अब्बा, आज मैंने मलका मिस्र से बातें की हैं। बूढ़े रिजाल के हाथों से जैतून के तेल का कटोरा गिरते गिरते बचा। क्या कहा? हाँ अब्बा, मैंने मिस्र की मलका से बातें की हैं, उसने खुद मुझे बुलाया था। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? अंबर की माँ ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। दोनों माँ बाप अंबर की बात सुनकर सकते में आ गए थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि मलका एक रोज अपने बेटे से गुफ्तगू कर सकती है। अंबर ने बाप और माँ को शाही सवारी का सारा वाकया सुना दिया। दोनों बूढ़े मियाँ बीवी बड़े गौर से वाकये का एक एक लफ्ज सुन रहे थे। अंबर कह रहा था, मलका ने मुझसे पूछा तुम्हारा बाप का क्या नाम है? बूढ़े रिजाल ने परेशान होकर पूछा, फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा मेरे अब्बू का नाम रिजाल है और वो एहराम बनाता है। मलका ने क्या कहा? कुछ नहीं, वो असल में मेरी बहादुरी पर बड़ी खुश हो रही थी, फिर उसने मुझे वापस जाने की इजाजत दे दी। माँ ने कहा, रब्बे अजीम तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरे बेटे की जान बचाई। बाप ने पूछा, मलका ने तुमसे और कुछ नहीं पूछा? बस मेरा नाम पूछा और फिर चुप हो गई। चुप हो गई? हाँ बजान बिल्कुल खामोश थी। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे वो कुछ सोच रही हैं। वो मेरी तब बड़े गौर से देखती रही। मलका आलिया ने कुछ और तो नहीं कहा? बूढ़े रिजाल ने इत्मीनान का सांस लिया और अंबर से कहा, अच्छा चलो अब हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। खाने के दौरान में बूढ़ा रिजाल यही सोचता रहा कि कहीं मलका आलिया ने अपने बेटे को पहचान तो नहीं लिया। असल में बूढ़ा रिजाल नहीं चाहता था कि अभी मलका अपने बेटे को पहचाने। वो चाहता था कि अंबर जरा और बड़ा हो जाए, फिर वो खुद उसको लेकर मलका की खिदमत में हाजिर होगा और उसे बताएगा कि अंबर उसका शहजादा बेटा है। उसे पूरी उम्मीद थी कि इसके बस मलका आलिया उसे ढेर सारा इनाम कराम देगी। दूसरी तरफ उसे ये भी खौफ था कि कहीं फिरौन उसे कत्ल ही न करवा दे। इसीलिए बूढ़ा रिजाल अभी तक खामोश था। वो कभी कभी ये भी सोचता कि फिरौन के मरने तक इस भेद को छुपाए रखना चाहिए। फिरौन मर जाए तो बड़ी आसानी से मलका मिस्र के सामने उसके बेटे के राज को अफशा कर सकता है। फिर अंबर की जिंदगी महफूज होगी। और खाने के बाद अंबर सो गया तो रिजाल ने अपनी बीवी से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मलका ने अपने बेटे को पहचान लिया? बीवी ने कहा, भला ये क्यों कर हो सकता है? अंबर की उम्र एक दिन थी कि मलका ने उसे दरियाए नील के लहरों पर बहा दिया था। 14 वर्ष बाद वो कैसे अपने बेटे को पहचान सकती है? फिर भी मुझे डर है अगर मलका ने उसे अपने बेटे को पहचान लिया तो वो जरूर उसे हासिल करने की कोशिश करेगी। अगर मलका ने अंबर को हमसे वापस ले लिया तो यकीनी तौर पर फिरौन को इसका इल्म हो जाएगा और वो अंबर के साथ साथ हम दोनों को भी कत्ल करवा देगा। रिजाल की बीवी सोच में पड़ गई। फिर कहने लगी, रिजाल तुम वहम करने लगे हो। मलका इतने बरस गुजर जाने पर अंबर को कभी नहीं पहचान सकती, मगर वो माँ है और माँ का खून जोश मार सकता है। फर्ज करें अगर अंबर को उसने पहचान भी लिया होगा तो वो कभी अंबर को वापस महल में बुलाने की गलती नहीं करेगी। उसे अच्छी तरह मालूम होगा कि इस तरह फिरौन को बेटे का पता चल जाएगा और वो नजूमियों की पेशन गोई के मुताबिक उसे फौरन कत्ल करा देगा। और कोई अजब नहीं कि वो मलका को भी साथ ही मरवा दे। ये तुम ठीक कहती हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब हमें भी मोहतात रहना चाहिए। फिक्र न करो, रब्बे अजीम हमारी हिफाजत करेगा। बूढ़े रिजाल ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या ख्याल है मैं अंबर को लेकर मलका आलिया की खिदमत में हाजिर न हो जाऊं? किस लिए? उसे शाही मोहर के साथ उसकी अमानत वापस करना है। खुदा के लिए ऐसी गलती कभी ना करना। इस तरह मलका और अंबर समेत हम सब बादशाह के जुल्म का निशाना बन जाएंगे। इसका मतलब है कि हमें हर हाल में फिरौन की मौत का इंतजार करना होगा। हाँ, इसी में हम सब की भलाई है। इतने में पोल का गुलाम शिकार की हुई मुर्गाबियां और उबली हुई अंजीरों की टोकरी लिए अंदर आया। रिजाल ने पूछा, ये कहाँ से लाया हो पोलका? पोलका ने भैंकी आंख पोंछकर कहा, मुर्गाबियां तो मैंने डंडा मार मार कर खुद शिकार की हैं और अंजीरें में तोफून दर्जी के बाग से तोड़ कर लाया हूँ। क्या तोफून से तुमने अंजीरें तोड़ने की इजाजत ले ली थी? पहले इजाजत नहीं ली थी, मगर जब वो मुझे अंजीरें तोड़ते देखकर बाग में आ गया तो मैंने उससे माफी मांगकर इजाजत हासिल कर ली थी। तुम्हें 1000 बार समझाया पोलका कि कभी किसी के बाग से बगैर इजाजत के फल मत तोड़ा करो,
مگر تم باز نہیں آتے، تم ضرور کسی نہ کسی سے میری لڑائی کرواؤ گے۔ میرے آقا، لوگوں کے باغ پھلوں سے لدے ہوئے دیکھ کر آپ کے غلام کے منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ میں بےتاب ہو کر باغ میں گھس جاتا ہوں اور پھل توڑنا شروع کر دیتا ہوں، اور اگر کسی نے تمہاری پٹائی کر دی تو مار کھا کر معافی مانگ لوں گا، مگر رب عزت کی قسم توڑے ہوئے پھل ہرگز واپس نہیں کروں گا۔ مار بھی کھاتا جاؤں گا اور پھل بھی کھاتا جاؤں گا۔ اچھا بابا، اب ہمارا سر نہ کھاؤ، جاؤ لے جاؤ یہ مرغابیاں اور انجیروں کو یہاں سے، اسے تم اکیلے ہی کھانا، میں چوری کا مال کھا کر اپنا بڑھاپا خراب نہیں کرنا چاہتا۔ غلام نے چونک کر کہا، میرے آقا، آپ اسے چوری کا مال کہتے ہیں؟ حضور، یہ تو میری محنت کا پھل ہے، خدا کی قسم پورے 101 مکے کھائے ہیں میں نے ان انجیروں کے لیے، اور ایک بھی انجیر باغ کے مالک کو واپس نہیں کی۔ بھائی اب چلے بھی جاؤ، جا رہا ہوں میرے آقا۔ اصل میں بوڑھا رجال ملکہ مصر کی سواری والے واقعے کے سلسلے میں پریشان تھا، اور وہ غلام پولکا کی بک بک جھک جھک سننے کو تیار نہیں تھا۔ غلام چلا گیا تو دوسرے کمرے میں جا کر وہ کھجور کی چٹائی پہ سوئے امبر کو غور سے اور محبت سے دیکھنے لگا۔ نیلی آنکھیں، سیاہ ریشمی بال، پھیکا شاہی ناک، وہ بالکل مصر کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ رجال دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھکائے واپس چل دیا۔ اسے امبر سے اپنے بیٹے کی طرح پیار تھا، اور وہ اس کی جدائی کبھی گوارا نہیں